Good morning, students. Chapter Financial Statements of a Company. Today's date is 25th of August. So, we are going to discuss the various heading and subheading of balance sheet. And under those heading and subheading, what type of items are being included. So, let's start. As you know, balance sheet is prepared under Schedule 3rd, Part 1 of Indian Companies Act 2013. So let's start discussing. First major heading on equity and liability side is shareholders funds, and shareholders fund basically includes three subheading. How many? Three. So out of those three, first one is share capital. So major heading is shareholders fund, subheading is share capital. Now this share capital includes what? Equity share capital, preference share capital, authorized capital, issued capital, subscribed capital, calls in arrears, and share forfeiture account. So in exam such type of items will be given and they will ask you under what heading and subheading these items are shown. So for that we must know under what major heading and subheading these items are included. Second major shareholders fund, second subheading is the reserve and surplus, and reserve and surplus basically includes what? Capital reserve. So it includes all accumulated profits. So capital reserve, security premium reserve, capital redemption reserve, debenture redemption reserve, statement of P&L. There may be debit balance or credit balance. Credit balance है तो profit, debit balance है तो loss. General reserve, revaluation reserve, share option outstanding account, sinking fund, investment fluctuation reserve, workman compensation reserve, etc. तीसरा जो सब हेडिंग आता है शेयर होल्डर फंड के अंदर, दैट इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, और इसके अंदर कोई सब आइटम नहीं है. सेकंड मेजर हेडिंग इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसके अंदर भी कोई आइटम इंक्लूड एक्स्ट्रा नहीं होती. तीसरा पार्ट इज नॉन करंट लाइबिलिटीज. तो नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर पहला मेजर हेडिंग आता है लॉन्ग टर्म बोरविंग्स. तो बेसिकली इट इंक्लूड्स व्हाट? लॉन्ग टर्म डेट्स विच आर पेबल आफ्टर 1 year, लाइक डिबेंचर्स, लॉन्ग मॉर्गेज लोन, सिक्योर्ड लोन, बैंक लोन, unsecured loan, public deposits, bonds, terms loan, etc. इसके अलावा सेकंड सब हेडिंग आता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी. इसके अंदर कोई आइटम फर्दर नहीं है एज इट इज सिंगल आइटम. अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़. तो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर वी इंक्लूड प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, trade payable if payable after a period of 12 months, they will be included under other long term liabilities. Done. तो तीन हेडिंग हमने सब हेडिंग डिस्कस किए नॉन करंट लाइबिलिटी के. नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, देन अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज. नेक्स्ट अगले पेज पे आते हैं बेटा. लास्ट सब हेडिंग है जो नॉन करंट लाइबिलिटी का, दैट इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन. तो बेसिकली इट इंक्लूड्स व्हाट? प्रोविज़न फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड. तो ये सारे एम्प्लॉयज़ फॉर इंश्योरेंस, प्रोविज़न फॉर इंश्योरेंस फंड, प्रोविज़न फॉर यू कैन से ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट फंड, वो सारा इसी में आएगा. इसके बाद फोर्थ मेजर हेडिंग आता है हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़. तो करंट लाइबिलिटी आल्सो कंटेन 4 सब हेडिंग. पहला सब हेडिंग आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इंक्लूड्स बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन रीपेबल ऑन डिमांड, कैश क्रेडिट एज वेल एज शॉर्ट टर्म लोन. सेकेंड सब हेडिंग इज ट्रेड पेबल. ट्रेड पेबल इज सम टोटल ऑफ क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल. सो ट्रेड पेबल इंक्लूड बेसिकली दीज 2 आइटम. नेक्स्ट other current liabilities. It is very important and a number of items are included under it, like current maturities of long term debts,
सेकेंड, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, pre-received incomes, unpaid dividends, unclaimed dividends, excess application money which is due for refund, interest accrued thereon, ये सारा भी इसी के अंदर. Calls in advance, output CGST, output SGST, output IGST, outstanding expenses, ये सारी आइटम किसके अंदर आती हैं? अदर करंट लाइबिलिटीज़ में. गेटिंग बेटा? आगे चलें. इसके अलावा है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न्स. तो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के अंदर हमने इंक्लूड करना है किसको? प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस एट्सेट्रा. तो ये थी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड यानी इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, जिसके अंदर वेरियस आइटम्स आर इंक्लूडेड. तो आज के लिए बस इतना ही. ठीक है, दैट्स ऑल बेटा, बाय.